Now we will study about protein. Previously we have seen that three main nutrients in our food is carbohydrate, protein and fats. We have already studied carbohydrate. Now we will study about the protein. Okay. Just look into the image. These are the food items which contain mostly high amount of protein. These are protein sufficient food items. Okay, now we'll study about protein, what protein do with our body, why protein nutrient food is necessary, and how protein works in our body. Okay, proteins are made up of building blocks called amino acids. What is amino acid? Amino acid combines to make proteins, and protein helps in our body to create new tissues, muscles, bones. Okay, amino acid is the main constituent, is the main chemical formula which combines to make protein. Okay, your body uses them to make new proteins. As I have said, that protein amino acids combines to make proteins, and our body makes new protein such as muscles and bones and other components such as enzymes and hormones. So our body requires protein diet to create new muscles, new bones and other components such as enzymes, which enzymes require our body to help you digest, something help you to sweat, help you any other metabolism in your body, and hormones like you have hormones which secrete in your body to control your body fluid level, body sugar level, your help in digestion. Those are hormones. Okay, you need protein in your diet to help your body repair cells and make new ones. So we require protein in our diet. Why we require protein in our diet? To repair cells. If you have some wound or you have a cut in your body, then how it will heal? Your protein helps your body, that portion, to heal, to create new cells so that it will cover that wound. Protein is also important for growth and development in children, teens and pregnant women. So प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन हमारे ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है. किसके ग्रोथ के लिए? चिल्ड्रन के ग्रोथ के लिए, टीन्स मतलब जो टीन एज के लोग होते हैं उनके लिए, और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए. हम लोग बच्चे को रोज बोलते हैं ना अंडे खाओ. क्यों अंडे खाओ? एग इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन. ओके, और प्रेग्नेंट वुमेन को बोलते हैं नट्स खाने के लिए, दूध पीने के लिए. तो क्यों बोलते हैं हम? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो नेसेसरी है उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, अभी हम देखेंगे कहाँ कहाँ मिलता है वो प्रोटीन, कहाँ कहाँ मिलता है, कौन सा फूड में प्रोटीन वी फाउंड प्रोटीन इन व्हिच फूड. ओके, फर्स्टली वी विल फाइंड इन मीट एंड फिश. देख लो फोटो को, मीट में है, ये चिकन है, ये फिश है, इसमें सब प्रोटीन, हाई प्रोटीन सफिशिएंट फूड. हम लोग को बोलते हैं ना जो जिम जाते हैं प्रोटीन खाने के लिए, चिकन बॉइल्ड चिकन खाओ, इसे बोलते हैं ना. क्यों बोलते हैं? क्योंकि चिकन इज हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनसाइड इट. ओके, एग्स खाने के लिए बोलते हैं, रोज सुबह एक मंडे हो या संडे रोज खाओ अंडे, बोलते हैं ना. क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें प्रोटीन चाहिए, हमारे बॉडी को प्रोटीन चाहिए टू क्रिएट न्यू मसल्स, न्यू बोन्स एंड टू हील आवर बॉडी. ठीक है, उसके बाद क्या है? डेयरी प्रोडक्ट. डेयरी प्रोडक्ट क्या होता है? ये सब होता है, दूध होता है, बटर होता है, पनीर होता है. ये सब क्यों खाने के लिए बोलते हैं हम? क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है. प्रोटीन हमें शक्ति देता है, हमें सब मतलब इम्यूनिटी, हमारे इम्यून सिस्टम को एनहांस करता है. एक सिंपल वर्ड में बोले तो इम्यून सिस्टम, वी डेवलप योर इम्यून सिस्टम.
लेगुमिनस लाइक बीन्स एंड लेंटिल्स। तो उसमें लेगुमिनस क्या होता है? बीन्स। बीन्स मतलब जो बीन्स होते हैं हमारे वो खाने में खाते हैं ना, बीन्स। लेंटिल्स, लेंटिल्स मतलब दाल होता है। एंड अदर लेंटिल्स थिंग्स, मूंग का दाल होता है, तूर का दाल होता है। वो सब चीज दाल खाने के लिए बोलते हैं। क्यों खाने के लिए बोलते हैं? इट कंटेन्स प्रोटीन, दैट्स व्हाई we are told to eat dals in our diet. Everyday diet we eat rice, dal. Why we will eat dal? Rice gives carbohydrate, dal gives protein. Okay, that is a worst combination we have ever seen. In some parts of India, we have seen that they will eat, give you bread and dal. Why? Bread is carbohydrate, dal is protein. Okay. हाँ, अभी हम देख लिया हम कहाँ कहाँ क्या क्या चीज मिलता है हमें। हम प्रोटीन मिलता है मीट से। तो इसका मतलब नहीं हम मन भर के मतलब जब चाहे तब खाते चले चिकन्स और एग्स। क्यों नहीं खाना चाहिए? Why we will eat in a stipulated amount, so that it will give us a fruitful result. What will happen if your body do not have enough protein? अगर आपका बॉडी में प्रोटीन सफिशिएंट नहीं होगा, अगर आप प्रोटीन के डाइट में नहीं खा रहे हो, आपको प्रोटीन सफिशिएंट खाना नहीं मिल रहा है, तो आपका बॉडी में क्या क्या चीज होगा, क्या आपको कौन सा डिजीज होगा, क्या होगा आपका बॉडी में, वो सब हमें अभी देखेंगे। A lack of protein can make you lose muscle mass, which in turn cuts your strength, make it harder to keep your balance and slows your metabolism. मैं बोला था ना, आपको प्रोटीन क्यों चाहिए? आपको प्रोटीन चाहिए आपका मसल गेन के लिए, आपका स्ट्रेंथ गेन के लिए, आपका बॉडी में हार्मोन्स आएगा, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, आपका डाइजेशन फास्ट होगा, आपका मतलब बॉडी बैलेंस रहेगा। अगर नहीं खाओगे तो क्या होगा? तो लैक ऑफ प्रोटीन कैन मेक यू लूज मसल मास, आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आपका मसल इंटैक्ट नहीं होगा, आपका मसल लूज हो जाएगा। विच इन टर्न्स कट्स योर स्ट्रेंथ, अगर आपका बॉडी में मसल स्ट्रेंथ नहीं रहेगा तो आपका क्या होगा? ज्यादा शक्ति नहीं आएगा, चलने फिरने में आसानी नहीं होगी, कोई चीज भारी चीज उठा नहीं सकते। इट मेक यू हार्डर टू कीप योर बैलेंस, आप चल नहीं सकते, ठीक से चल नहीं सकते, कोई टकरा गया तो गिर जाओगे। एंड स्लोज योर मेटाबॉलिज्म, खाना खा रहे हो, डाइजेशन नहीं हो रहा है, पेट खराब हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि यू डोंट हैव सफिशिएंट प्रोटीन इन योर बॉडी। और क्या क्या डिजीज होता है? इट कैन ऑल्सो लीड्स यू टू एनीमिया व्हेन योर सेल डू नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन व्हिच मेक्स यू टायर्ड। एनीमिया क्या होता है? आपका बॉडी में अगर सेल्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, प्रोटीन नहीं खा रहे हो आप, तो आपको टायर्ड फील होगा, स्लीपीनेस आएगा, कोई काम करने जा रहे हो तो आपका काम नहीं कर सकते, आपको दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, आपको टायर्ड लगेगा। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका बॉडी में इनफ प्रोटीन नहीं है। insufficient of protein may cause various health problems। मैं बोला था that it will cause you serious health problems also if your diet has not contain enough amount of protein। Okay, then what are these? Such as kwashiorkor, marasmus, impaired mental health, edema, organ failure, wasting and shrinkage of muscle tissues, and weakness of immune system। ये क्या होता है? ये सब डिजीज कौन सा डिजीज होता है? क्वासियोकर। क्वासियोकर क्या होता है? मारास्मस क्या होता है? इस फोटो देखिए, क्वासियोकर का डिजीज का, ये बच्चे को क्वासियोकर हो गया था, इसको मारास्मस हुआ है। ये क्या हो रहा है? क्या सिम्टम्स क्या है? स्वेलिंग ऑफ लेग्स, उनका पैर फूल जाना, स्पेयर्स हेयर, बाल झड़ जाना, मून फेस विद little interest in surrounding, flakiness appears in the screen, swollen abdomen, पेट फूल जाना, thin muscle but fat present, मसल बहुत पतला हो जाना बट उनका शरीर में चर्बी चर्बी वो फैट जैसे रहेगा। ठीक है, मतलब शरीर पूरा दुबला हो जाएगा, पेट निकल आएगा, ये सब वाला सिचुएशन को
ऐसा वाला सिम्टम जिनका होता है उनको क्वाशियोकर बोलते हैं, ठीक है। मारास्मस में डिजीज में क्या होता है, मारास्मस डिजीज में उनका सब कुछ ठीक रहेगा, बस शरीर पूरा दुबला पतला हो जाएगा, ठीक है। ये फोटो को भी देख ले, इसको एडेमा बोलते हैं, मतलब आपका मसल श्रिंकेज होकर रह जाएगा या सालोइन होकर रह जाएगा। अगर आप ये उंगली दिया है ना, तो उंगली का वो इम्प्रेशन रह जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं एडेमा। ये जो एडेमा लिखा है, एडेमा इम्पेयर्ड मेंटल हेल्थ, दिमाग की संतुलन ठीक नहीं रहेगा, ऑर्गन फेलुअर, आपका किडनी फेलुअर हो जाएगा, आपका कोई लिवर फेलुअर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। वेस्टिंग एंड सिंकेज ऑफ मसल टिश्यूज, वही एडेमा जैसा सिचुएशन है ना। वीकनेस ऑफ इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम पूरा वीक हो जाएगा, मतलब आपका कहीं घाव हो जाएगा, आपका घाव भरेगा नहीं। तो क्यों नहीं भर रहा है, क्योंकि आपका शरीर में प्रोटीन नहीं है। तो प्रोटीन होगा तो नहीं वो मसल्स तैयार हो गए ना, तो नहीं है तो इसलिए घाव नहीं भर रहा है। अभी पढ़ेंगे व्हाट विल हैपन इफ योर बॉडी हैव एक्सेस प्रोटीन। आपके पास अगर एक्सेस प्रोटीन है, मतलब हद से ज्यादा प्रोटीन है, तो क्या करेंगे आप। The body can store protein, so once needs are met, any extra is used for energy or stored as a fat. बॉडी प्रोटीन को स्टोर नहीं कर सकता। हाउ योर बॉडी विल स्टोर प्रोटीन, इट विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फैट। फैट मतलब चर्बी होता है, आप मोटा हो जाओगे जितना ज्यादा आप, मतलब एक दिन में जितना आपका डाइट है उससे ज्यादा आप अगर अंडे चिकन वो प्रोटीन सफिशिएंट फूड्स खा रहे हो, देन क्या होगा, इट विल हेल्प यू टू स्टोर फैट्स, ओके। High blood protein levels are linked to several medical conditions and issues like dehydration, chronic inflammation और inflammatory disorder। क्या होगा, आपका बॉडी अगर हाई प्रोटीन अमाउंट है तो सीवियर मेडिकल कंडीशन आएगा आपको। कौन सा कंडीशन लगेगा, डिहाइड्रेशन, बॉडी को डिहाइड्रेटेड लगेगा, कोई इन्फ्लेमेटेड हो जाएगा, मतलब कहीं कहीं सूज जाएगा और पैर फूल गया या ऐसा कुछ होगा आपका। क्यों होगा, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, आपका हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, आपका शुगर कंटेंट ज्यादा होगा। सब बॉडी में कोई भी चीज, कोई भी न्यूट्रिएंट्स आपका ना एक्सेस ज्यादा अच्छा है ना कि डेफिशिएट अच्छा है। ये बैलेंस्ड मील, ए बैलेंस्ड डाइट इज ऑलवेज नेसेसरी टू योर बॉडी। वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा, वायरल इन्फेक्शन क्या होगा, हेपाटाइटिस बी हो जाएगा, हेपाटाइटिस सी हो जाएगा, HIV एड्स हो जाएगा। ये क्या होता है, ये सब क्या होता है, लैक ऑफ इम्यून सिस्टम इन योर बॉडी। ड्यू टू लैक ऑफ इम्यून सिस्टम इन योर बॉडी दिस टाइप ऑफ डिजीज हैव अकर्स टू यू। और लैक ऑफ इम्यून सिस्टम क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके बॉडी में प्रोटीन है। प्रोटीन क्या करता है आपको, प्रोटीन गिव्स यू एनर्जी, इट गिव्स हेल्प्स योर इम्यून सिस्टम टू एक्टिव, ओके। अभी हम प्रोटीन तो हम लोग देख लिए, अभी प्रोटीन को टेस्ट कैसे करेंगे, कौन सा खाने में प्रोटीन है, कौन सा फूड आइटम से प्रोटीन है, ऐसा कैसे देखेंगे। हम तो कार्बोहाइड्रेट का देख लिए कि कैसे देखें, हम आयोडीन सोल्यूशन टेस्ट में देख लिए। अभी प्रोटीन का कैसे देखेंगे, प्रोटीन का कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा टेस्ट, एक टेस्ट है उसका, प्रोटीन का टेस्ट है, उसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है, कैसे करते हैं हम टेस्ट, अब एक टेस्ट करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम प्रोटीन का टेस्ट करते हैं। कोई फूड में प्रोटीन है तो कैसे उसको टेस्ट करेंगे, तो हम इस टेस्ट को बोलते हैं कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा टेस्ट। तो उसके लिए हमें कॉपर सल्फेट चाहिए सोल्यूशन एंड कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन चाहिए। हम कैसे करेंगे, we have to make copper sulfate solution by dissolving 2 grams of copper sulfate in 100 ml of water। क्या करेंगे, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेंगे, 10 ml वाटर में उसको मिक्स करेंगे, तो हमारा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रेडी हो गया। समझ में आ गया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैसे होगा, 2 ग्राम्स कॉपर लेंगे 10 ml वाटर में, 100 ml वाटर में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन कैसे करेंगे, 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा लेंगे 100 ml वाटर में, तो कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन भी रेडी। हमारे पास अभी कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हो गया, कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन हो गया। तो अभी प्रोटीन, हमें क्या कोई फूड आइटम लेना है, उसमें प्रोटीन का टेस्ट करना है,
तो प्रोटीन वाला कोई फूड आइटम क्या होता है, आप बोलिए। प्रोटीन वाला फूड आइटम होता है मीट होता है या कोई एग होता है। तो एक काम कीजिए, आप एग व्हाइट लीजिए, एग व्हाइट में ज्यादा प्रोटीन होता है। एग व्हाइट को लेकर पूरा मास करके, मतलब मास दे इनटू पाउडर, पाउडर का जैसा, मतलब पूरा उसको पीस दो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट 10 ड्रॉप सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा इनटू द फूड आइटम इन टेस्ट ट्यूब। उस जो प्रोटीन आइटम आप लिए हैं उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। उसके डालने के बाद वो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हम तैयार किया था ना, उसका 2 ड्रॉप्स लेंगे, ठीक है, उसका 2 ड्रॉप्स लेंगे। और 10 ड्रॉप्स लेंगे किसका, caustic soda solution का। मतलब 2 drops of copper sulfate solution added to 10 grams of caustic soda solution in a test tube in the presence of any food item. If that food item is contains protein, then it will convert into a violet color. Okay, see into the this image। अगर आपका टेस्ट ट्यूब में ऐसा वायोलेट कलर आ गया, इसका मतलब दैट फूड आइटम्स कंटेन प्रोटीन। वायोलेट कलर इंडिकेट प्रोटीन प्रेजेंस। ओके, ऐसे हमें प्रोटीन का टेस्ट करना है, ठीक है। ये सब चीज आप घर में भी कर सकते हो। कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा मार्केट में मिल जाता है, उसको लाकर आप एक टेस्ट ट्यूब में हो या कहीं भी कोई भी ऐसा चीज ले जाओ जिसमें आप उसको कलर को देख सकते हो, तो टेस्ट कर लो, ठीक है। Now we'll read about fat. Okay, among three most vital ingredients in nutrition: carbohydrate, protein, then fat. We have already read protein and carbohydrate. Now we'll read about fat. Okay, what is fat? All types of fat are high in energy. सभी फैट का एनर्जी बहुत हाई होता है उसमें, दैट इज अ बंडल ऑफ एनर्जी। क्योंकि आप पढ़े थे प्रोटीन में, अगर प्रोटीन यूज नहीं होगा तो प्रोटीन किस फॉर्म में स्टोर होगा, फैट फॉर्म में स्टोर होगा। फैट इज द स्टोरेज ऑफ एनर्जी। ओके, a gram of fat, whether it is saturated or unsaturated, provides 9 kilocalorie of energy। फैट तीन टाइप का होता है, एक सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट और एक ट्रांस फैट भी होता है, ठीक है। मेनली 2 टाइप्स का होता है, सैचुरेटेड फैट, नॉन सैचुरेटेड फैट। एक थर्ड टाइप होता है ट्रांस फैट, वो 1 ग्राम का फैट में 9 किलो कैलोरी, मतलब 37 किलो जूल ऑफ एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। As a part of healthy diet, you should try to cut down on foods and drinks that are high in saturated fat and trans fat and replace them with unsaturated fat। Saturated fat क्या होता है? Saturated fats, those fats which remain solid in room temperature। and trans fat क्या होता है? Trans fat are the worst fat, they are bad for cholesterol, they rise bad cholesterol and also decreases the good cholesterol. Therefore trans fat are the worst fat। Okay, saturated fat are fats with mainly what happen when we eat trans fat or saturated fat, it will tighten our artery। हमारा जो ब्लड जाता है आर्टरी में उसको टाइट कर देता है। उसको टाइट करने से क्या होता है, उसका ब्लड का फ्लो बहुत, मतलब ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो फैट हमारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट को हम अनसैचुरेटेड फैट से रिप्लेस करने से हमारे डाइट में हेल्दी होगा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कौन सा फैट होता है, कैसे कैसे चीज में, किस किस चीज में कौन सा फैट मिलता है, ये सब ये फोटो में देखिए। सैचुरेटेड फैट फूड, सैचुरेटेड फैट कौन सा है, चीज है, चॉकलेट है, कोकोनट ऑयल है, ये सब चीजें सैचुरेटेड फैट। दीज आर गुड फॉर बैड कोलेस्ट्रॉल। आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करेगा। कोलेस्ट्रॉल आपका बॉडी में अगर इंक्रीज होगा तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड फैट क्या है, अनसैचुरेटेड फैट देखिए,
कैनोला ऑयल है, एवोकाडो है, कैस्यूज है, पीनट ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, ये सब चीज अनसैचुरेटेड फैट है। यू शुड इंक्रीज दिस अनसैचुरेटेड फैट फूड rather than increase this saturated fat। और ये ट्रांस फैट फूड है तो मतलब खाना बंद कर देना चाहिए, कभी कभार एक दो खा लेने से चलेगा, लेकिन ये सबसे वर्स्ट फैट है। इसमें क्या किया जाता है, जो केक या बर्थडे में केक काटते हैं वो अनसैचुरेटेड फैट, डोनट्स है, क्रैकर्स है, कुकीज है, ये सब में ट्रांस फैट फूड सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो अभी देखेंगे कि एनिमल फैट, मीट एंड मीट प्रोडक्ट। एनिमल फैट, एनिमल का वो जो चर्बी होता है, मीट प्रोडक्ट में जो जो चर्बी होता है, डेजर्ट बेस्ड ऑन ग्रेन, डेयरी प्रोडक्ट, डेजर्ट मतलब जो मीठा खाते हैं हम, वेजिटेबल फैट, फिश ऑयल, एवोकाडो, पीनट, नट्स, सीड्स, कैनोला ऑयल, फिश, ये सब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट है। ठीक है, फ्राइड फूड, ये पहले वाला है सैचुरेटेड फैट, ये अनसैचुरेटेड फैट, ये वाला है फ्राइड फूड, बेक्ड फूड आइटम्स, प्रोसेस्ड फूड, जो सब चीज हमको खाने के लिए स्वादिष्ट तो लगता है लेकिन हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही खराब होता है। इसलिए ये सब चीज हमको बड़े बोलते हैं कि फ्राइड फूड मत खाओ, बेक्ड फूड मत खाओ, मोटा हो जाओगे, तबीयत बिगड़ जाएगा। ठीक है, ये जब हमारा एज बढ़ता है उस हिसाब से अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है तो ये सब हमको कोलेस्ट्रॉल और हमारा डायबिटीज, ये सब चीज में ये सब हमको डिजीज ला देता है। ठीक है, तो हम लोग ट्रांस फैट फूड और सैचुरेटेड फैट फूड को रिप्लेस कर सकते हैं अनसैचुरेटेड फैट फूड में, सो दैट वी कैन गेट ए हेल्दी डाइट। ओके, अभी हम पढ़ेंगे क्या होगा आपके पास में अगर अगर आप टोटल फैट नहीं है आपका, योर बॉडी डू नॉट गेट इनफ फैट, आपको बॉडी को फैट मिलता ही नहीं है, तो हम क्या, अपना प्रॉब्लम क्या होगा, सभी चीज में जैसे बताया सभी चीज रहना जरूरी है बट इन ए बैलेंस्ड डाइट। अगर आपके पास ज्यादा होगा तो दिक्कत हो जाएगा, अगर आपके पास कम होगा तो भी दिक्कत होगा। ठीक है, अभी देखेंगे आपके पास अगर फैट नहीं हो, आपका शरीर को फैट नहीं मिला, इफ योर बॉडी डू नॉट गेट enough fat, not getting fat, okay, if you do not get enough fat in your diet, you may notice symptoms such as dry rashes, hair loss, a weaker immune system, and issue related to vitamin deficiency। जो भी है हमारा फैट एज ए बंडल ऑफ एनर्जी स्टोरेज, आपको हर टाइप का एनर्जी, जो भी फॉर्म में एनर्जी आता है वो स्टोर होने के लिए फैट जैसे स्टोर होता है। ठीक है, अगर आपका फैट नहीं है मतलब आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है, एक्स्ट्रा बैकअप नहीं है, आपके पास जो भी एनर्जी आप खा रहे हो वो आपको सफिशिएंट नहीं हो रहा है, इसलिए आपको क्या होगा, वीकर इम्यून, आपका इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाएगा, हेयर लॉस होगा, ड्राई रैसेस हो गए, सूखा पड़ेगा आपका हाथ पे, मतलब जैसे तेल नहीं है। फैट का क्या है, फैट मोस्टली इज ए ऑयल, मोस्टली फैट इज ए ऑयल विच हेल्प्स योर स्किन टू ग्लो। आपका अगर फैट नहीं है, आपका स्किन में फैट नहीं है तो आपका स्किन सूखा सूखा दिखा जाएगा, तो उसमें डिजीज क्या हो जाएगा, डिजीज डर्मेटिटिस हो जाएगा, डर्मेटिटिस जो नीचे वाला फोटो है वो डर्मेटिटिस है, ऐसा ऐसा रैसेस हो जाएगा आप में शरीर में। स्लो वुंड हीलिंग, आपका अगर कोई घाव हो गया वो हील नहीं होगा, हेयर लॉस होगा, वही बोले फ्रीक्वेंट सिकनेस, आप हमेशा सिक हो जाओगे, आपका कोई कोई डिजीज आपको हो जाएगा, हमेशा आप बीमार पड़ते रहोगे। ठीक है, ये अगर आपको फैट नहीं होगा आपके शरीर में, आपके शरीर में अगर ज्यादा फैट होगा तो क्या होगा, इन जैसे मोटे हो जाओगे। इन जैसे मोटे होने से दिक्कत नहीं, जैसे देखने से दिक्कत नहीं, उन इसको बोलते हैं ओबेसिटी। दिस इज ए सीरियस हेल्थ कंडीशन इज नोन एज ओबेसिटी। इससे क्या होता है आपको, आपको क्या होता है, हार्ट डिजीज होता है, लिखा है ना यहाँ पर, पीपल विथ ओबेसिटी आर मोर लाइकली टू डेवलप ए नंबर ऑफ पोटेंशियल सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज और स्ट्रोक। हार्ट डिजीज होता है, हार्ट डिजीज मतलब क्या होता है, सीएडी होता है, कैडियो आर्टरी डिजीज। उसको क्या होता है, उसमें आपका भेंट, हार्ट में जो भेंट जाता है ना, ब्लड फ्लो होता है, वो भेंट जाम हो जाता है। क्यों जाम हो जाता है, आपके ब्लड सेल में एक्सेस कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है, आपका अगर ट्रांस फैट फूड, सैचुरेटेड फैट फूड ज्यादा खा रहे हो तो आपका ब्लड
मोटा हो जाएगा तो आपका आर्टरी ब्लॉक हो जाएगा। आर्टरी अगर ब्लॉक होगा तो हार्ट में स्ट्रोक होगा, हार्ट में स्ट्रोक होगा, ब्रेन में स्ट्रोक होगा। ब्लड, हमारे ब्लड सेल शरीर के सभी जगह में जाते हैं, तो जहां जहां भी ब्लड सेल जाम हो जाएगा उसका आर्टरी पूरा जाम हो जाएगा, ब्लड फ्लो नहीं करेगा, वो प्रेशर से क्या होगा, वो आर्टरी फट जाएगा। फट जाने का मतलब है स्ट्रोक। आपका अगर कोई साइड में, कोई शरीर में किसी साइड में पैरालिसिस हो जाएगा, आपका हार्ट में होगा तो हार्ट स्ट्रोक है, ब्रेन में होगा तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, कहीं पर भी हो जाएगा स्ट्रोक। इसलिए फैट आपके लिए अच्छा जितना है बुरा भी उतना है। इसलिए हमेशा जो भी चीज खा रहे हो अपना हेल्थ को बैलेंस रख कर खाओ, ठीक है। ओबेसिटी मेक्स यू मोर लाइकली टू हैव हाई ब्लड प्रेशर। मैं बोला था ना, ओबेसिटी ये जो मोटे लोग को, जितना मोटा हो जाएंगे आपको वो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा हो जाएगा, विच आर रिस्क फॉर हेल्थ डिजीज, हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। टाइप 2 डायबिटीज भी हो जाएगा। है ये सब आपके, मतलब सभी चीज अब हम पढ़े, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए, प्रोटीन पढ़ लिए, फैट पढ़ लिए, ये सब थ्री मेन इंग्रेडिएंट न्यूट्रिएंट्स है आपके बॉडी में। सभी चीज इन्हें बैलेंस्ड फॉर्म में रहना चाहिए। आपका वेट इन्हें बैलेंस्ड फॉर्म रहना चाहिए, आपका हाइट के हिसाब से वेट रखना चाहिए, तो कब बॉडी एक हेल्दी कंडीशन में रहेगा, आपको कोई डिजीज नहीं होगा, आप हमेशा फिट एंड फाइन रहेंगे, ठीक है। इसलिए हम सब ये सब चीज क्यों पढ़ रहे हैं, हम अब कंपोनेंट ऑफ द फूड पढ़ने का मोटो क्या है हमारा, कि हमें एक बैलेंस डाइट रखना चाहिए। हम अभी जो मॉडर्न जमाना हो गया, हम कुछ भी खा रहे हैं, कोई भी पैकेज्ड फूड खा रहे हैं, कहीं पर भी फास्ट फूड खा लिए, कहीं पर हमारा खाने पीने का, हम पैसे के पीछे इतना पागल हो रहे हैं कि हमें खाने पीने का कोई ठीक ठिकाना नहीं है। इसलिए वी आर इन ए 23rd century, we are in a era of good science era, but we have to learn these simple components. We have to remember that we have having a good health makes us fit and fine, and health is the utmost important thing in your life. आप अगर वो सभी चीज आप खा रहे हैं उसको नोटिस करेंगे तो आपको ना कि जिम जाना जरूरत है, ना कि जाकर पैसे देकर कहीं से हेल्थ का ट्रेनर लाना जरूरत है, कुछ भी नहीं। आप बस ये सब चीज को नोटिस रखो कि ये चीज हमें खाना है, ये चीज नहीं खाना है, एक चीज कितना क्वांटिटी में खाना है, ये कितना क्वांटिटी में खाना है, ये बस चीज इतना अपने दिमाग में रखो तो आपका डाइट पूरा हेल्दी होगा, ठीक है। अब ये फैट फैट हम कहाँ, ये तो टेस्ट पर फैट करेंगे, फैट तो देखकर पता चल जाएगा, जिसमें ज्यादा तेल निकल रहा होगा वो फैट है। आप कोई भी पेपर लीजिए, एक ये इसमें एक टेस्ट है, वो टेस्ट में क्या करते हैं, वो पेपर ले जाएंगे। आप एक काम कीजिए ना, आपके जो फास्ट फूड खाते हैं, कोई रोल खाते हैं, उसमें वो पेपर को देखो, पहले कैसे था, पहले ऐसा व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा, उसके बाद ऐसे कुकिंग ऑयल का पैचेस आ जा रहा होगा, तो वो फैट है, चलो ठीक है। तो हम इससे जान गए कि फैट कौन सा चीज में है। अभी कोई भी आप फास्ट फूड का चीज उठाकर एक पेपर में रख कर टैप कर दो तो उसमें ऐसा तेल आ जाएगा, इसका मतलब ये फैट है। समझ में आया? आप अगर चावल लोगे, चावल लेकर ऐसे करो ना, उसमें आएगा क्या? नहीं आएगा ना, तो वो फैट नहीं है, ठीक है। आप अगर कहीं कुरकुरे के पैकेट लीजिए, कोई चिप्स के पैकेट लीजिए, उसको ऐसे कीजिए, वहां पर भी आ जाएगा, ठीक है। इसे हम फैट का टेस्ट कीजिए। ये देखिए, ये वो बोला ना, वो जो चिप्स के पैकेट में यहाँ पर देखिए, ये एफएसएसएसआई का एक टर्म से, यहाँ पर फूड सेफ्टी अथॉरिटी, यहाँ पर वो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन देता है। हम लोग इतना पढ़े, आप लोग अभी कोई भी चिप्स तो खरीदे होंगे, तो उसमें उसका पैकेट के पीछे देखना, कोई भी फूड आइटम खरीदे होंगे, वो एफएसएसएस का नॉर्म से कि आप अपना न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन अपना बैक साइड में डालना। देखिए, आप जो चिप्स खाते हैं उसमें अभी हम पढ़े प्रोटीन पढ़े, तो देखिए प्रोटीन लिखा है ना, प्रोटीन कितना है इसमें, 6.9 ग्राम्स का प्रोटीन है, ठीक है। उस 100 ग्राम के पैकेट में कितना है, 6.9 ग्राम्स का प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, जो ये आलू है ना,
देखिए हम पढ़े थे आलू में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, तो इसलिए चिप्स में कार्बोहाइड्रेट कितना हो गया, 100 ग्राम्स के चिप्स में 52.9 ग्राम्स का कार्बोहाइड्रेट है। उस कार्बोहाइड्रेट में हम पढ़े थे शुगर, इसमें देखो टोटल शुगर है 2.5 ग्राम, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में शुगर है तो वो ये ब्लड शुगर है, ये अच्छा वाला शुगर है। और एडेड शुगर, ये शुगर ठीक नहीं है, ये शुगर एडेड शुगर कितना है 0.2 ग्राम, इसको फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसमें अभी हाँ फैट पड़ेंगे। फैट में देखिए इसमें सैचुरेटेड फैट है, सैचुरेटेड फैट क्या है, हमारे करंट हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। हेल्थ वहाँ पर कितना है 12.5 ग्राम, 100 ग्राम के पैकेट में 12.5 ग्राम का यहाँ पर क्या है सैचुरेटेड फैट है। क्यों सैचुरेटेड फैट है, क्योंकि इसको हम जो तेल में उसको पकाए थे ना, वो लोग पका कर वो अच्छा तेल नहीं होगा, इसलिए सैचुरेटेड फैट 12.5 ग्राम आ रहा है। ट्रांस फैट 0.1 ग्राम है। अनसैचुरेटेड फैट का नामो निशान ही नहीं है। ठीक है, इसलिए ये चिप्स भी खाओ, मतलब जितना जरूरत है, मतलब एक दो पैकेट कभी कभार खा लिए तो चलेगा। ठीक है, ये चीज हमेशा कोई भी चीज खाने का चीज खरीदो तो उसका पीछे ये जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन लिखा होगा, उसको पढ़ो। ठीक है, ये पढ़ना जरूरी है, because you get the information and you got to know that what we are eating, is it good for your health or not good for health. Okay, that's the end of my video, and do like, subscribe, share, and please comment if any other topic you would like me to cover. And this is my channel name Navodaya 220 1212. So do like, share, subscribe. Thank you.